Okay, good morning everyone. So we are starting and we will be continuing with yesterday's class. Yesterday I gave you one specific thing to do, that was to come prepared with one example for licensing and one example for franchising. Okay, and you were supposed to write the theory part also of it. So today I'm going to just start with that topic only. Many of you might have done it, and you were supposed to send me the handwritten snapshot of the handwritten document. And last evening, Soumya asked me where we have to post it. So you people are supposed to post your assignments that are going to be handwritten only. आपके पास you have to make one register for this subject, and where I'm going to give work, you are supposed to write assignment 1, assignment 2 or notes of the theory, and you are supposed to take the snapshot it, then transfer it to your computer, and finally you are going to post that assignment or attach that file, the snapshot, to the Google Classroom and hand it into. Now, how you're going to do this I'm not going to teaching you right now. I'm going to teach you this tomorrow, because I'm going to design an assignment and then I'm going to give you. But for the time being, for today, as I asked you to get one example of licensing and franchising, so I'm going to ask randomly any one of you to give me the example, and this I would continue for another 5 to 6 minutes till all the students join. Now, before asking you for the example, I would give you a quick revision. कल हम लाइसेंसिंग के बारे में बात कर रहे थे. लाइसेंसिंग बेसिकली आपका और फ्रेंचाइजिंग इज नियर अबाउट सेम, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम. लाइसेंसिंग आप हमेशा गुड्स के लिए करते हो, ठीक है, विच इज टैंजिबल, समथिंग विच इज टैंजिबल. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट फ्रेंचाइजी, इट इज मेयरली मोर टुवर्ड्स द सर्विस पार्ट. ठीक है, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, हम वॉल्ट डिज्नी के बारे में बात कर रहे थे. वॉल्ट डिज्नी आपका फेमस है फॉर मेकिंग द कार्टून कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, वॉल्ट डिज्नी आपका क्या फेमस है, किसके लिए? फॉर मेकिंग द कार्टून कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक मिक्की माउस हो गया, डोनाल्ड डक हो गया. अगर आपको इनका कार्टून चाहिए तो आपको उसके लिए परमिशन लेनी होगी, पेटेंट या कॉपीराइट लेना होगा फ्रॉम द ऑथराइज्ड पर्सन, एंड इन रिटर्न यू आर गोइंग टू पे सम फीस. हाउएवर, अगर हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और समझे, तो आप ये देखा होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह पेप्सी बिकती है. ठीक है, सबने देखा होगा. तो ऐसा नहीं है कि पेप्सी आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है. अगर आप पीछे पेप्सी के देखो तो HUL या कुछ ऐसा लिखा रहेगा, ITC कुछ भी, तो वो इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर की है. हाउएवर, बट टू टेक द लोगो ऑफ द पेप्सी, यू हैव टेकन लाइसेंस फ्रॉम द ऑथराइज्ड पर्सन. ठीक है. हाउएवर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेंचाइजी पार्ट, फ्रेंचाइजी में आपका क्या होता है कि जैसे पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, अब ये इतने फेमस ब्रांड्स हैं कि आपको कभी भी पिज्जा खाना होता है, आप इंडियन आउटलेट को चूज नहीं करते हो. हाउएवर, देयर आर मेनी इंडियन आउटलेट्स आल्सो जो अब अपने नेम के अंदर पिज्जा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. आपने सुना होगा बहुत सारे नेम्स, लेकिन फिर भी आप एक ट्रस्टेड, एक रेप्यूटेड ब्रांड को ही प्रेफर करते हो. यू ऑलवेज वांट टू हैव अ पिज्जा, यू विल गो टू अ ब्रांड जिसका गुडविल या रेपुटेशन मार्केट में बहुत ज्यादा हाई है. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया में एक आउटलेट खोलना है अपना पिज्जा सेलिंग. नाउ आई एम लाइक आई अप्रोच दिस पर्सन इन द पिज्जा हट एंड सेड, आप मुझे इंडिया एक फ्रेंचाइजी दे दो, मैं अंडर ये आपका लोगो लेकर के पिज्जा डिलीवर करना चाहती हूँ, सेल आउट करना चाहती हूँ. सो that person said to me, okay, I'm give you this franchisee of my Pizza Hut brand, but in return you're going to pay me some fees, and you will make sure that it's my humble request, kindly switch your microphones off because it is disturbing. Whenever I'm going to ask anyone, you can put it on, and if you have any question, you can put your microphone on one at a time and we can have a conversation. So you are going to now what I said, मुझे को पिज्जा यहाँ इंडिया में सेल करना है, so approach the authority of Pizza Hut, and they said me, okay, we have no problem, we can give you franchisee of my name. However, but you're going to sell under my terms and conditions.
ओके, अब इनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे आपके, कि ये इतने सालों से पिज्जा बना रहे हैं, इनका एक रेप्यूटेड ब्रांड है, ठीक है। अब ये जिनका ब्रांड होता है वो अपने ब्रांड के संग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो उनकी सिग्नेचर डिश है पिज्जा। उसमें वो जो भी इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं या उनका जो भी टेक्निकल नो हाउ है, हाउ दे मे बेस, या क्या उसमें वो ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट ऐड ऑन कर रहे हैं, उनको अपना प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम रखना है, तभी उन्होंने मुझे अपनी फ्रेंचाइजी दी, ठीक है। हाउएवर टेक्निकल नो हाउ इज नेवर एवर डिस्क्लोज्ड इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसर जो होता है अभी भी अपना टेक्निकल नो हाउ डिस्क्लोज नहीं करेगा आपको। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, वो अपना जैसे लोगो दे देगा, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं एडिडास की, नाइकी के शूज हो गए, ठीक है, ये क्या करेंगे, आपको लोगो दे देंगे नाइकी का, लेकिन ये आपको ये नहीं बताएंगे कि वो प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। However, in case of franchisee, the entire thing is disclosed. In both the cases, you are supposed to pay them royalty. It is just like a fees for the use of the patent. Now, I'm going to call randomly 5 names, and you are supposed to answer me what example you have jotted down. First name is Kajal. Kajal, can you hear me? You can have microphone on, and you can answer me one name of licensing and one example for licensing and one example for franchising. Yes, ma'am. For licensing, Mickey Mouse on their products. Mickey Mouse is the example of licensing, and for franchisee, uh, Pizza Hut and Burger King. Okay, ठीक है. It's my humble request. Kindly, there are many examples in the world. आप और भी examples choose कर सकते हैं. Do not say the same example. ठीक है. Next, Soumya, may I have the example? For licensing, Microsoft Office is also example. Okay, Microsoft Office you are saying for licensing. अच्छा, ठीक है. Which Indian firm is making Microsoft? I don't know. बेटा आप लोग एक चीज अभी यहाँ मैं इस लेक्चर में बोल रही हूँ, ये सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इट इज नॉट ओनली द थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी इसमें बहुत डिफिकल्ट है, तो अगर आप उसे कोरिलेट करके चलोगे, थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे, देन योर मेंटल होराइजन वुड बी एक्सपैंडेड मोर. नेक्स्ट इज सौम्या, कैन यू गिव मी द एग्जांपल? सौम्या, आई एम ऑडिबल? हाँ. Yes, ma'am. In franchising, I've taken example of McDonald's, Baskin Robbins, etc. हाँ, Baskin Robbins is again one of the very good example. And for licensing? Yes, ma'am. Licensing, like in Zimbabwe, Coca-Cola has allowed United Bottlers the license of making Coke. Okay, very good. Next, may I ask Pallavi to answer? Hello. Am I audible to you, Pallavi? Yes, ma'am. Can you give me one example for each of them? Ma'am, for franchisee, I would give the name of Belgium Waffles. Very good. And for? And ma'am, for licensing, there are the brand like Donald Ducks and Michael Jordan. These are the examples of licensing brand name. Okay. Next name is Sarah. Can you give me example for licensing and one example for franchising? Yes, ma'am. Ma'am, for licensing, there is a famous movie character that name is Batman, and they sell the whole movie character to different type of brands. Like for example, recently they sell it to Lego, and in that they just change the whole background of the Batman character. That is the example of licensing. And in franchising, there is a famous movie franchisee that is Marvel Cinematic Universe, where they change the director, but the storyline goes the same. Okay, very good. Last, I'm going to take 5 students today. Tomorrow we're going to again take 5 students who all are left. Last name is Diksha. Can you give one example of licensing and franchising? So we can move ahead. Yes, ma'am. Ma'am, in licensing, it is Apple and Microsoft. They are doing cross licensing.
And then there is music licensing also, where you can take the license for the old music. And ma'am, in franchising, it is Burger King. Okay. So now you people are clear with this. This is one of the form of international business. अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो जैसे मैं यहाँ डोमेस्टिक कंट्री इंडिया में बैठी हूँ, मेरी डोमेस्टिक कंट्री नेटिव लैंड इंडिया है. नाउ आई वांट टू डू बिजनेस इंटरनेशनली. तो मैंने क्या किया, एक फॉरेन कंट्री का ब्रांड का क्या ले लिया, लाइसेंस या फ्रेंचाइजी ले ली, एंड आई स्टार्ट डूइंग बिजनेस. दिस इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट. यहाँ आप इंडियन मार्केट में एक फॉरेन ब्रांड को एक्सप्लोर कर रहे हो. Okay, today we will move ahead with need for international business. अब इन पॉइंट्स को आप खुद elaborate करेंगे, इसका मैं elaboration I'm not going to give. However, इसमें एक बहुत relevant है, so you can take your notebook and be ready to note it down. First is need for international business. पहला पॉइंट है आपका to achieve higher rate of profits. जब आप इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट लेवल एक मीडियम स्केल पे हो रहा है. हाउएवर जब आप एक्सप्लोर करते हो फॉरेन मार्केट्स में, देन यू कैन हैव अ स्टीप राइज इन प्रॉफिट्स. सो इफ यू आर हैविंग एट द बैक ऑफ योर माइंड एन ऑब्जेक्टिव दैट आई वांट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, so you should go with the option of exploring more in the markets in the foreign countries. Second है आपका expanding the production capacity beyond the demand of the domestic country. डोमेस्टिक कंट्री आपका नेटिव लैंड है, आप उसमें 8 to 10 years से बिजनेस कर रहे थे. आपने देखा कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी इससे कहीं ज्यादा है, बट डोमेस्टिक कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं है. सो यू डिड सम रिसर्च. ठीक है, नाउ यू ड्यूरिंग योर रिसर्च यू फाउंड आउट दैट सम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज are in requisite demand of the product which your machines can produce or which your technical know-how can produce. So you decided to expand your production capacity and you moved your plant to a foreign country. इसमें आपके पास दो options होते हैं. जो अगर हम बात करें आप डायरेक्टली अपना प्लांट का यहाँ मतलब मशीन नहीं है, प्लांट का मतलब है आप पूरी अपनी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप फॉरेन कंट्री में सेटअप करते हो तो हम उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. तो दिस इज वन ऑफ द नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. नेक्स्ट है आपका सीवियर प्रोटेक्शन इन द होम कंट्री. भाई इंडिया में आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बहुत ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, आपको पता है कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे, तो आप किसी ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में आपने स्विच किया. वहां पे जब आपने स्विच किया तो आपने ये देखा कि अरे यहाँ पे तो कंपटीशन कम है, तो मेरा प्रोडक्ट काफी ज्यादा एक्सप्लोर में कर सकता हूँ या वहां पे डिमांड मेरे प्रोडक्ट की ज्यादा हो सकती है. सो ड्यू टू द सिवियर कंपटीशन इन द होम कंट्री यू डिसाइडेड टू स्विच योर प्रोडक्शन यूनिट और यू डिसाइडेड टू एक्सपोर्ट योर गुड्स टू द होस्ट कंट्री. होस्ट कंट्री हम कहते हैं किसी भी फॉरेन लैंड को. नेक्स्ट इज लिमिटेड होम मार्केट. आपके पास जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो. हाउएवर यू आर नॉट गेटिंग द राइट टू डू इट इन योर होम कंट्री, सो यू डिसाइडेड टू गो विद द फॉरेन कंट्री. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कंडीशन. आजकल आपने देखा होगा, अगर हम बात करें जब भी न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके अंदर काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन दे दी थी. ठीक है, एक और चीज हुई है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आई वांट टू हियर फ्रॉम रैंडम पीपल इफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ गैट एंड WTO. कितने लोगों ने ये नाम सुना है? GATT, गैट एंड WTO. GATT stands for General Agreement on Tariffs and Trade and WTO stands for World Trade Organization. One after the other आए हैं. Anyone of you who have heard this name? Who has heard this name? Yes, ma'am. Who are you? Please say your name also. Ma'am, Archita. हाँ, you have heard this name? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. World Trade Organization. मैम इसमें जितने भी ऑल ओवर कंट्रीज के जो भी ट्रेड होते हैं, इसमें बेसिकली ये इसके ही अंडर में आते हैं, मतलब इसके ही थ्रू होके जो भी ट्रेड्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो इसके ही मतलब थ्रू होके सारी चीजें होती हैं. मतलब एक ये प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्लेटफॉर्म टाइप का
बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट मैंने सुना है मैम डब्ल्यू ट्रेड हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मेनी ऑफ यू कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने तो ये बहुत ज्यादा सुना होगा। अब गैट क्या था आपका? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये अनाउंस किया गया था फॉर सम ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक एंड इन्फेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द होम कंट्री। भाई जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड आया था कि थोड़े बहुत टैरिफ्स लगेंगे अगर आप ट्रेड कर रहे हो फॉरेनर्स के साथ या फॉरेन कंट्री के साथ। और ये टैक्स क्यों लगाए जाते थे? ताकि आप अपनी इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीजें होने लगी। जब ये हुआ तो आपने देखा होगा ये सब चीजें क्यों लगाई गई। ये चीजें, गैट लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट एम था एंटी डंपिंग, जो चाइना ने स्टार्ट किया था एक टाइम पहले। उन्होंने बहुत कम रेट पे, इवन लोअर देन द कॉस्ट, वो डंप करने लग गए थे अपने गुड्स इंडिया में, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो रही थी, तो बहुत लॉस होने लगा। तो तब आया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अब एक टाइम के बाद ये पूरी तरीके से हटा दिया कंप्लीटली, इट वाज मूव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देन देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट ने पूरी लिबरलाइजेशन दे दी कि आप एक्सप्लोर करो फॉरेन कंट्रीज में, वहां से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, ठीक है। एंड बहुत सारी लिबरलाइजेशन मिल चुकी थी उन लोगों को। हाउएवर ये पॉलिटिकल कंडीशंस एक सबसे बड़ा एग्जांपल, ये रीजन है कि आज इंटरनेशनल बिजनेस इतना एक्सप्लोर कर रहा है। दिस वर्ल्ड ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन गैट, ठीक है, ये आपके कोर्स में बहुत डिटेल में है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या नीड थी, क्यों ये आया, ठीक है, और इसके आने से आपने कितनी सारी चीजों में एक्सप्लोर किया, तो ये हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी आपको बहुत सारी लिबरलाइजेशन मिली है टू गो विद द फ्लो। नेक्स्ट हम चलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। अब ये एक अलग इंपॉर्टेंट चीज है। भाई आपके पास इतना अच्छा मैन पावर है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपकी खुद की इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, आपका मैनेजरियल कॉम्पिटेंस इतना अच्छा है, तो आप सोच रहे हो कि क्यों ना मैं फॉरेन कंट्री में स्टेप रखूं और वहां की मार्केट को भी कैप्चर करूं। आपने आउटसोर्सिंग का नाम, ग्लोबल आउटसोर्सिंग का नाम सुना होगा, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे इंडियन अकाउंटेंट्स, इंडियन मैनेजर्स, ठीक है, एक्सपैट्रिएट्स बन रहे हैं, मूव टू द फॉरेन कंट्री। एंड इसमें सबसे ज्यादा पार्ट जिनका होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स एंड इंजीनियर्स का। अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करिए, कभी टाइम निकाल के अपने यूट्यूब पे या किसी पे भी आप सर्च करोगे, विकीपीडिया पे, यू विल फाइंड इट आउट कि काफी जो इंडियन आपके ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू वर्क इन द फॉरेन कंट्री, और काफी अच्छा इनका रेशियो भी है वहां पे। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी मैनेजरियल कॉम्पिटेंस है। आप बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ देख लीजिए, वो इंडियंस ही है। इफ आई एम टेकिंग द नेम ऑफ सुंदर पिचाई, ही इज अ इंडियन, एंड देयर आर मेनी मोर। इफ यू गो एंड सर्च, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इंडियंस हैं, एंड द गुड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द बिजनेस देयर। कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज अनदर रीजन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मैन पावर आपको कम पड़ रही है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गवर्नमेंट ने काफी रिड्यूस कर दी। अब जब टैरिफ्स नहीं लग रहे हैं, तो आप गुड्स इजिली ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। नेक्स्ट इज नियरनेस टू रॉ मटेरियल। अब आपने कहीं पे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, आपको क्या करना है, उस फिनिश प्रोडक्ट को गैदर करने के लिए यू वांट सम ऑफ द रॉ मटेरियल। टू गेट दैट रॉ मटेरियल, यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपके कंट्री के आसपास ही है, ठीक है। आसपास आप रॉ मटेरियल्स लेकर के उसे फुल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके आप उसे फाइनली एक्सपोर्ट कर सकते हो टू नंबर ऑफ कंट्रीज। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। अब भाई मार्केट शेयर आपको करना है, मार्केट शेयर अपना बढ़ाना है। पहले आप सिर्फ 3 कंट्रीज में कर रहे थे बिजनेस, लाइक इंडिया हो गया, देन दुबई हो गया, देन सिंगापुर हो गया। नाउ यू वांट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर टू द कैनेडियन फर्म्स और कैनेडियन कंट्रीज, ठीक है। आप उधर नाफ्टा रीजन में जाना चाहते हो। नाफ्टा इज योर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें आपके ट्रायलैटरल ब्लॉक होता है, तो आप वहां जाना चाहते हो, दैट इज यूएस, मेक्सिको एंड कनाडा। तो आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, सो अगेन यू कैन प्रोन टू इंटरनेशनल बिजनेस। Now this word liberalization, privatization and globalization, this is very important, very important. It has been asked in short many times, so you can write in your copy.
and take this points. ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म होता है एलपीजी. However, I'm not going to say कि ये तीनों वर्ड एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, नहीं. Liberalization is the main word, you can see here in this diagram. Liberalization आपका main part है. However, from liberalization there are two other things coming out, this privatization and globalization. अब liberalization क्या होता है? सबसे पहले तो ये, anyone can tell what is liberalization before I start answering the question? Any one of you? Ma'am, What is liberalization? ma'am, this is Ahana. हाँ, Ahana. Ma'am, liberalization means freedom to work. Anything which is free to work or freedom. Okay, okay, very good. Anyone else? Ma'am, this is Suruchi. हाँ, Suruchi. Ma'am, this is the removal or loosening of restrictions Very on good. doing business. This is the appropriate answer. Liberalization, liberal का क्या मतलब होता है कि आप सारे stringent rules को remove कर दो, ठीक है, या उन्हें थोड़ा सा loosen up कर दो ताकि आप freely trade कर सको. अब गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन क्यों लेकर के आए थे वो? क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए, जब भी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड लगा तो हमने ये चीजें देखी कि बहुत सारे हिंड्रेंसेस आ रहे थे इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. ठीक है, जब आप फॉरेन कंट्रीज के संग ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको अच्छा रेवेन्यू नहीं मिल रहा था. ठीक है, फिर बहुत सी प्रॉब्लम होने लगी कि गवर्नमेंट डेफिसिट में बजट जा रहा था. ठीक है, डेफिसिट का क्या मतलब होता है? व्हेन योर यू कैन से पेमेंट्स आर मोर, आपने लोन वगैरह ज्यादा लिया है एंड इनकम आपकी कम है, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो बजट डेफिसिट में जा रहा था. तो बहुत सी चीजें ऐसी होने लगी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हमने जितने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जो भी कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट में एज ए हिंड्रेंस प्रूफ हो रहे हैं, वो सब हम मिनिमाइज कर देंगे एंड एक लेवल पे खत्म भी कर देंगे. इसके अंदर दो चीजें आ गई. मैंने आपको बताया क्या? प्राइवेटाइजेशन, दूसरा आया ग्लोबलाइजेशन. दिस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. प्राइवेटाइजेशन में आपका क्या मतलब होता है? प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया? अपना रोल रिड्यूस किया. बहुत सारी गवर्नमेंट फर्म्स थी या यूनिट्स थी जिसमें से गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ ट्रांसफर कर देती हूँ. और ये कैसे ट्रांसफर होता है मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि एक लिख दिया, एग्रीमेंट साइन कर दिया कि चले गए, कंपनी चली गई, ऐसा नहीं. वो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी कंपनी के शेयर्स फ्लोट कर देती है. तो अब या मेजॉरिटी शेयर्स अगर किसी प्राइवेट फर्म ने ले लिए तो 50% डिसइन्वेस्टमेंट हो गई. इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ था कि जितनी भी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस थी जो लॉस में जा रही थी, जो अच्छा नहीं कर पा रही थी, ठीक है, बहुत उनको प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब आप समझ लीजिए कि रेवेन्यू तो निकल ही नहीं पा रहा था और गवर्नमेंट अब उस पर इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे. सो इन्होंने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वेस्ट किया और कहा कि तुम हमारे शेयर्स खरीद लो तो तुम्हें ओनरशिप भी मिल जाएगी. अब इसमें बहुत से पॉइंट्स आते हैं, लाइक आप ये कह लो कि पार्शियल प्राइवेटाइजेशन या पार्शियल सेल भी हुई. कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने कहा कि मैं पूरी अथॉरिटी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दूंगा, मैं 50% ओनरशिप अपने पास रखूंगा, ठीक है, और बाकी 50% में आप प्राइवेट सेक्टर को दे दूंगा. हाउएवर कहीं कहीं ये भी हुआ कि 50% से ज्यादा, मोर देन 50% आपने शेयर्स ट्रांसफर कर टू द प्राइवेट सेक्टर एंड लेस देन 50% गवर्नमेंट के पास रह गई. तो इसमें क्या हो गया? सब्सटैंशियल ओनरशिप थी दोनों के पास. अब ये सारी चीजें क्यों हुई? सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आपका? कि गवर्नमेंट को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करनी थी. ठीक है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन गवर्नमेंट की खराब हो चुकी थी, तो गवर्नमेंट को उसको इंप्रूव करना था. सेकंड हुआ ये कि आपके पास वर्कलोड सेक्टर कंपनी के पास बहुत ज्यादा था, तो वो अच्छे से अच्छा काम नहीं कर पा रही थी, या मैनेजरियल कॉम्पिटेंस इतनी अच्छी नहीं थी. ठीक है, और कंज्यूमर को बेटर गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए थे, तो आप वो भी नहीं दे पा रहे थे.
तो इन सारी चीजों की वजह से गवर्नमेंट ने अपना कम कर दिया. ऑल ऑफ दिस केम व्हेन देयर इज अ क्राइसिस इन 1991 फाइनेंशियल क्राइसिस, और उसके बाद एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, which you can go and surf on the internet. उसके अंडर आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आ गया. मैं कुछ एक आपको कंपनीज के नाम बता दे रही हूँ जो आपके यू कैन से जिस पे सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन हुई थी. यू कैन अगेन सर्व दिस ऑन इंटरनेट, आपको जिससे ये पता चल जाएगा कि किस ईयर में हुआ और कितना गवर्नमेंट का इसमें अभी भी स्टेक बाकी है, गवर्नमेंट ने पूरा ही दे दिया है. So first is Lagan Jute Machinery Company Limited. This was under the government authority, however, went into successful privatization. Then is Modern Food Industries Limited, Pradeep Phosphates Limited, Bharat Aluminium Company, Hotel Corporation of India, and Hindustan Zinc Limited. ये कुछ एक कंपनीज हैं जो इनिशियली गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इसकी ओनरशिप दे दी थी. हाउएवर अगर मैं बात करूं, ये कुछ एक कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपने सुनी होगी जो बहुत पुरानी नहीं है, जैसे भारत एल्यूमिनियम कंपनी. दिस इज नाउ नॉट वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये केरला का बहुत फेमस एयरपोर्ट था, ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर के पास जा चुका है. दिल्ली एयरपोर्ट इज ऑल्सो स्विच्ड. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी आपकी प्राइवेट फर्म के पास है. देन देयर इज मारुति उद्योग, मुंबई एयरपोर्ट एंड बीएसएनएल. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद बीएसएनएल, ये बीएसएनएल नहीं है, दिस इज बीएसएनएल एंड प्रेजेंटली आई थिंक दिस इज ओन्ड बाय टाटा ग्रुप. तो आप ये सब चेक कर सकते हैं. तो ये सारे कंपनी गवर्नमेंट ने देखा कि वो हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि वो इसके शेयर्स खरीदें एंड ओनरशिप राइट ट्रांसफर कर दी गई. So this was one of the very important things regarding privatization. However, ये बहुत important था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी कि अपने वो उतना अच्छा रेवेन्यू नहीं अर्न कर पा रही थी गवर्नमेंट, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली एफिशिएंसी भी बहुत डिक्लाइन हो रही थी. They were not able to provide goods and services in a better condition to consumers, so they decided to switch to privatization. ठीक है, अब लास्ट इसमें आपका है ग्लोबलाइजेशन. अच्छा, ग्लोबलाइजेशन को मैं बहुत छोटे में आई एम एक्सप्लेनिंग यू, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पे हम एक पूरी आपको थ्योरी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से. तो अभी आप ग्लोबलाइजेशन सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था लिबरलाइजेशन. अब लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने लाया, उसमें आ गया प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन के बाद गया आपका ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन में आपका मेन फोकस क्या था? फॉरेन ट्रेड के ऊपर. आपने पूरा अथॉरिटी दे दिया कि आप वर्ल्ड में किसी के साथ भी ट्रेड करो, ठीक है, आप इतना अच्छा करो कि आप अपने कंपनी को अगर लेकर के जाना चाहते हो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, प्लांट खरीदना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीदना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू. यू कैन ओपन एन एफडीआई. गवर्नमेंट ने इसमें एफडीआई भी इंकरेज किया, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसका क्या मतलब होता है? आप गए फॉरेन में, आपने वहां लैंड खरीदा, ठीक है, अपना प्रोडक्शन यूनिट सेट किया इन एनी ऑफ द कंट्री एज पर योर विल एंड विश, ठीक है. तो यू कैन ईदर, और ये भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वहां गए आपने लैंड खरीदा, ठीक है, आपने वहां पे यूनिट सेट की, आपने देखा कि वहां फॉरेन में आपके पास इतने पैसे, आप फॉरेन में गए, देखा कि फॉरेन की कोई कंपनी है जो कि बहुत अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है, और आपने गए वहां पे, आपने वो कंपनी खरीद ली. एक मुझे कंपनी याद आ रही है, आई डोंट नो वेदर यू पीपल आर अवेयर ऑफ दैट. दिस इज अ कार कंपनी थी एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड टाटा. I'm not getting the name of that car. I'll make sure get it and tell you. And then Tata purchased that company. अब वो टाटा के अंडर में solely, it is one of the prestigious car. If anybody remembers that, I'm not getting that name. I think it is Jaguar something. If anyone can get it back. Yes, ma'am, it's Jaguar. Is Jaguar exactly. और इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है. कभी टाटा उस कंपनी को अप्रोच कर रहे थे एंड उस कंपनी को अप्रोच कर रहे थे कि मुझे इस कंपनी में मतलब स्टेक मिल जाए, लेकिन तब उस कंपनी के ओनर ने, जैगवार के ओनर ने उनको मना कर दिया था. यू गो एंड सी दैट हिस्ट्री, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. हाउएवर ये कि वो एक पॉइंट के बाद वो कंपनी इतनी लॉस में चली गई दैट द सीईओ ऑफ दैट कंपनी आस्क्ड टाटा ग्रुप टू
take over the stake of Jaguar. तो आप ये देख सकते हैं कि इतना ज्यादा इंडिया ने भी अपना अच्छा किया, या उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी थी कि यू कैन ऑल्सो गो एंड बाय समथिंग अ कंपनी इन द फॉरेन लैंड एंड यू कैन एक्सपैंड योर ऑपरेशंस अब्रॉड. हाउएवर आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दैट स्टोरी ऑफ टाटा. आपको ये मिल जाएगी कहीं भी यूट्यूब पे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो ग्लोबलाइजेशन में आपका क्या है, आपने बहुत ज्यादा फोकस किया फॉरेन ट्रेड पे, ठीक है, आपने एक्सपैंड किया अपना बिजनेस, अब आप फॉरेन कंपनीज के संग डील कर रहे हो, ठीक है. उसके बाद आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है. नाउ इट इज जस्ट ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली यू कैन से बॉर्डरलेस वर्ल्ड. आप कहीं भी कंट्री में किसी के संग भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है. तो हम ये कहते हैं कि दिस ग्लोबलाइजेशन फिनोमेना हैज रिमूव्ड ऑल द बाउंड्रीज. तो इसमें आउटसोर्सिंग भी आ जाता है. आउटसोर्सिंग भी आपका एक आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है. तो ड्यूरिंग आउटसोर्सिंग मॉडल आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी हायर कर सकती है किसी भी प्रोफेशनल को, ताकि वो आकर के आपकी कंपनी में वर्क कर सके, ठीक है. तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप सोर्सिंग की बात करें तो वो आईटी सेक्टर ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो दिस हैज लाइक पास्ट फ्यू इयर्स में आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है. कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क मिलता है इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को फॉर 2 to 3 years प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए. दे कैन स्विच टू फॉरेन कंट्री एंड दे कैन वर्क देयर. दिस हैज ट्रेमेंडसली ग्रोन ओवर इयर्स, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये इसके कुछ एक पार्ट्स हैं. तो कुछ एक बेनिफिट्स भी हैं ग्लोबलाइजेशन के. हाउएवर आई सेड दिस वी आर गोइंग टू डू मोर इन डिटेल. So any questions for today's class? By the time I'm taking the attendance, you can write the question in the you can say chat box also. You can put your microphone and let me know if there is any question. I'm giving you 2 minutes. Ma'am? What is, better just say your name also because I get confused with voice. Ma'am, I'm Nazreena. हाँ नजरीना बोलो बेटा. मैम आपने कल जो होमवर्क दिया था हमें लिखने के लिए, तो आई थॉट कि हमें वर्ड फाइल में करना है, तो नहीं मैंने अच्छा. वर्ड दिस इज फाइल वन, में किया था. this is one very important announcement from to everyone. Many of the students will say कि मैं word file में ही कर लूँ, ठीक है. word file में बेटा आप कर सकते हो, लेकिन there are 90% of chances that you are going to cut, copy and paste, ठीक है. बहुत बच्चे नहीं भी करेंगे, बहुत बच्चे खुद टाइप करेंगे, अपने वर्ड्स में लिखेंगे, बहुत बच्चे क्या करेंगे उसको कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे. तो वर्ड फाइल के जो भी आपके होंगे असाइनमेंट्स, दैट आई एम गोइंग टू क्लियरली स्पेसिफाई कि आपको ये रिसर्च करनी है इंटरनेट से, तो आप उसे पूरा पेस्ट कर लो. एंड इन आवर टॉपिक दिस इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू मोर ऑफ दीज टॉपिक्स ऑल्सो, तो वो मैं आपको बताऊंगी. हाउएवर फॉर दिस टॉपिक व्हाट आई सेड, द लाइसेंस फ्रेंचाइजिंग, अप्रोक्सीमेटली आपको 1 पेज का एक आंसर प्रिपेयर करना है, जिसमें आप थोड़ी थ्योरी लिखोगे लाइसेंसिंग की विद 1 एग्जांपल एंड फ्रेंचाइजिंग की विद 1 एग्जांपल. could be 1 register page and you have to click and you have to paste it in the Google Classroom. However, I am going to give you time till Monday for this. आपका डेडलाइन है मंडे को और मैं फ्राइडे को ये असाइनमेंट पोस्ट करूंगी, तो आप करोगे इस असाइनमेंट पे एंड यू कैन डू इट. हाउएवर मैं इस पे थोड़ा सा कल डिस्कस कर लूंगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वी आर फॉलिंग आउट ऑफ द टाइम, सो आई if anyone has any question, we can discuss it in tomorrow's class, ठीक है. And today I'm going to mail you these PPTs and whatever theory I'm having for that, ठीक है. Thank you so much everyone. And tomorrow we are going to discuss and you can raise your questions on this topic tomorrow also. I'm going to give you another 5 minutes in the beginning, okay. Thank you ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you everyone.